غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے فضائی حملوں اور زمینی کارروائی میں شہادتیں 16,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ شہر کے 35 میں سے 26 اسپتال مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ایمبولینسوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ کا گودام چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے مزید 19 اہلکار بھی مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ کسی غیر ملکی فورس کو یہ ذمہ داری سونپنے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی 3 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قیمت میں اضافہ دسمبر کے بجلی بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ بجلی کے بعد گیس بھی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ سوئی ناردرن نے گیس مزید 137.62% مہنگی کرنے کی درخواست اوگرا میں دائر کر دی۔ سوئی ناردرن نے گیس 1,715 روپے فی MMBTU مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے۔ گیس کی قیمت میں اضافہ 1 جولائی 2023 سے مانگا گیا ہے۔ درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ IMF سے مذاکرات کے تحت نان ٹوائلٹس کے بجلی کنیکشنز کاٹنے کا فیصلہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور عالمی مالیاتی فنڈز ٹیم کے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ FBR اور IMF کی تکنیکی ٹیم کے ورچوئل مذاکرات میں کمپلائنس، رسک مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں سے ٹیکس کی وصولی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے بانی PTI کو الیکشن کمیشن پین کرنے سے معذرت کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سزا دینے والے جج نے گھر آ کر خود معافی مانگی۔ جج کو اسی بنا پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا، لیکن سزا بحال رکھی گئی۔ نارووال میں پارٹی ارکان کے درمیان ناراضگی ایک حلقے کی وجہ سے ہے۔ پارلیمانی بورڈ میرٹ پر حلقے میں ٹکٹ کا فیصلہ کرے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھایا ہے کہ 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، کیا اس صورتحال میں انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک لکی مروت میں پولیس ہی نہیں، رات کو مسلح افراد کا راج چلتا ہے۔ ہم انتخابات ملتوی نہیں کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پرامن انتخابی ماحول دیا جائے۔
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह। कीवीज के खिलाफ पहली मर्तबा टी20 सीरीज जीत ली। दूसरे विमेन टी20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी और 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 127 रन बनाई। वजीर आजम ने कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा होगा। रोमानवी सूफियाना कलाम को मखसूस अंदाज में गाकर अमर करने वाले अजीज मियां कवाल को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। मुल्क के नामवर कवाल अजीज मियां 17 अप्रैल 1942 को पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए की डिग्री हासिल की और कवाली का चुनाव किया। अजीज मियां कवाल ने अल्लाह ही जाने कौन बशर है, तेरी सूरत, शराबी में शराबी समेत सैकड़ों कवालियां गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्हें ये एजाज भी हासिल था कि उन्होंने अपनी गाई गई ज्यादातर कवालियों की शायरी खुद तहलीक की। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। डेरुल बलाग, खान यूनिस, नसीरात और ब्रिज कैंप पर इसराइली बमबारी से एक रोज में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के फिजाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइल ने एक हफ्ते की जंग बंदी के बाद मजीद शिद्दत के साथ जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। जंग बंदी से कबल शुमाली इलाकों में कार्रवाई के बाद अब वो जुनूब की जानिब बढ़ रहे हैं। आरजी जंग बंदी के खात्मे के बाद से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 तक पहुंचने का भी खदशा है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज के दीर अल बलाह के रिहायशी इलाके में फिजाई हमले में 50 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने 3 खानदानों के घरों को निशाना बनाया। गजा शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंसों पर भी हमले किए हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से एक बार फिर फास्ट फोर्स बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया गया है। हर्जी हलेवी का कहना है कि जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले शुमाली गजा को महफूज बनाने के लिए हैं। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की जंगजुओं के साथ झड़पें जारी हैं। हमास के अस्करी ग्रुप इस्लामिक जहाद ने इसराइली फौज से झड़पों की वीडियो जारी कर दी है। इस वीडियो में रॉकेट लॉन्चर्स और गन्स से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप का मुहासरा कर लिया और आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा का गोदाम छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 19 अहलकार भी मारे गए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान के शहरी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए और अमरीकी सफारत खाने के बाहर जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में गजा पर बमबारी कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से अमरीका के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा किया। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने जंग के बाद गजा की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान कर दिया है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि हमास के साथ जंग खत्म होने के बाद इसराइली फौज ही गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल जारी रखेगी। किसी गैर मुल्की फोर्स को यह जिम्मेदारी सौंपने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंग के बाद गजा का कंट्रोल किसी बैनुल अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। तनाज़े खत्म होने के बाद उसे फौज के बगैर मुल्क बनाना चाहिए। गजा को अस्करियत से पाक करने के लिए सिर्फ एक ही फौज ये कार्रवाई देख सकती है और वो इसराइली फौज है। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा।
फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। अवाम हो जाए मजीद झटके के लिए तैयार। बिजली के बाद गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरखास्त तोगरा में दायर कर दी है। सुई नॉर्दर्न ने गैस 1,715 रुपए फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त की है। गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा गया है। दरखास्त 2023-24 की रेवेन्यू जरूरियात में कमी पूरा करने के लिए दायर की गई। सुई नॉर्दर्न की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक माली साल 2023-24 के लिए 181 अरब 51 करोड़ 60 लाख रुपए रेवेन्यू कमी का तखमीना है। गैस की कीमत 2,961 रुपए 98 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की जाए। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैस की मौजूदा कीमत 1,246 रुपए 49 पैसे फी MMBTU है। दरखास्त में बकाया जात कीमत में 1,209 रुपए 14 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा गया है। रुपए की कदर में कमी की मद में 56 रुपए 48 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा गया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। IMF से मुज़ाकरात के तहत नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आलमी मालियाती फंड्स तकनीकी टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। FBR और IMF की तकनीकी टीम के वर्चुअल मुज़ाकरात में कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए FBR ने बताया कि वर्चुअल मुज़ाकरात में मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर भी बातचीत हुई और नॉन फाइलर्स को भिजवाए गए नोटिस पर IMF टीम को ब्रीफिंग दी गई। जरा के मुताबिक FBR ने IMF तकनीकी टीम को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसमें नॉन फाइलर्स के खिलाफ बिजली के कनेक्शन काटने का कदम उठाया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी PTI और फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाएगी। वजारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन पेश करने की माजरत की थी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर वजारत कानून की राय के बाद जेल में ट्रायल का फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 13 सितंबर को अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI ने 21 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाले जज ने घर आकर खुद मुआफी मांगी। जज को इसी बनाह पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सजा बहाल रखी गई। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी एक हल्के की वजह से है। जब एक एक टिकट पर 13 उम्मीदवार होंगे तो फिर छोटी मोटी नाराजगी एहतजाज तो होगा ही। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो मामला हल हो जाएगा। सियासतदानों के बच्चों को ही टिकट देने पर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासतदान के बच्चे अगर सियासत में दिलचस्पी लें तो इसमें अचंभे की क्या बात है। जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो सियासतदान का बच्चा सियासत में क्यों नहीं आ सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया है कि 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि डेरा इस्माइल खान टांग लकी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है, जबकि पेशावर में भी बदअमनी के वाकयात हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने साथ ही ये भी कह दिया कि इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन ये एक सवाल तो है
ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں پرامن انتخابی ماحول دیا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں نیا ریکارڈ قائم۔ سٹاک مارکیٹ میں آج تیسرے روز بھی زبردست تیزی رہی۔ 100 انڈیکس نے 63,000 کی سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس 519 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 63,775 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹاک مارکیٹ کو ملکی معیشت کی جانب سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق الیکشن کے لیے فنڈز کا جاری ہونا، IMF سے اچھے مذاکرات کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 دسمبر 2023 کو 2028 افغان شہری واپس چلے گئے، جن میں 478 مرد، 336 خواتین اور 1214 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 65 گاڑیوں میں 145 خاندانوں کے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ 5 دسمبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,12,000 سے زائد ہو چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ خیبر پختونخوا دور دراز علاقوں تک تعلیم کے فروغ کے لیے متحرک ہیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے اعلیٰ حکام کی ہدایات پر تعلیم سب کے لیے جیسے اہم اقدامات کے تحت باجوڑ، مومند، خیبر سوات، دیر، بنیر اور چترال میں تعلیم کے فروغ کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں ان اضلاع کے دور دراز علاقوں میں عوام کو آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں۔ ان اضلاع میں پہلے سے قائم اسکولوں کی مخدوش عمارتوں کو نہ صرف تزئین و آرائش کی جا رہی ہے بلکہ ان اسکولوں میں کلاسز کے باقاعدہ اجرا کے لیے تمام سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اسکولوں میں ضرورت مند طلباء و طالبات کو اسکول یونیفارم، کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سوات میں گورنمنٹ ماڈل کالج کی بلڈنگ میں آگ لگنے کے بعد پاک فوج نے عارضی ٹینٹوں میں کلاسز کا اجرا شروع کیا۔ باجوڑ، خیبر، دیر، بنیر میں مختلف اسکولوں میں تزئین و آرائش مکمل کر کے انہیں مکمل فعال کر دیا گیا۔ ان اضلاع کی عوام تعلیم کے فروغ کے لیے ان اقدامات پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے اعلیٰ حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ عوام نے تعلیم کے فروغ کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کو خوب سراہا۔ اشیاء خورنوش میں جعل سازی کرنے والے عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی میں 50 کلو چائنا سالٹ، لیٹر کولڈ ڈرنکس، جبکہ چکوال میں 73 لیٹر کولڈ ڈرنکس، 15 لیٹر دودھ اور 8 کلو پتی تلف کر دی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق خفیہ اطلاعات پر راول ٹاؤن 2 میں ممنوعہ چائنا سالٹ کا بیپاری پکڑا گیا۔ بارہا نوٹسز کی خلاف ورزی پر سپلائر کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر 2 کیٹرنگ یونٹس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چکوال میں زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس اور پتی کے فروخت پر 7 سٹورز مالکان کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ جہلم میں ممنوعہ اور غیر معیاری اشیاء کے استعمال پر مختلف فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے۔ معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ شہری ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کے لیے فوڈ سیفٹی ہیلپ لائن 1223 پر شکایت درج کروائیں۔ ملک فصیح احمد نے بطور چیئرمین بیت المال صدر ڈویژن لاہور چارج سنبھال لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ ملک فصیح احمد نے بطور چیئرمین بیت المال صدر ڈویژن لاہور چارج سنبھال لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ملک فصیح احمد نے بطور چیئرمین بیت المال صدر ڈویژن لاہور چارج سنبھال لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ لاہور صدر ڈویژن سے متعلق معاملات کو احسن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ حاجی نواز جٹ کوہ نور نیوز والے امین جٹ نواز کارپوریشن والے کے بھائی پاک فوج کے صوبیدار محمد آصف خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمد آصف نے دوران ڈیوٹی شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ نماز جنازہ کل صبح 10 بجے گاؤں
भाटी गेट में अदा की जाएगी। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। हाजी नवाज जट कोहिनूर न्यूज वाले अमीन जट नवाज कॉरपोरेशन वाले के भाई मां पाक फौज के सूबेदार मोहम्मद आसिफ खाली के हकीकी सजा मिले हैं। मोहम्मद आसिफ ने दौरान ड्यूटी शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे गांव भाटी कोट चौक नंबर 3 में अदा की जाएगी। मीरपुर खास की तहसील हुसैन बख्श मरी के नवाही गांव अली मोहम्मद महर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में आर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें तुलबा को आर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त बैग्स, किताबें और कापियां तकसीम की गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लुगारी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास की तहसील तालका हुसैन बख्श मरी के नवाई गांव अली मोहम्मद मेयर के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से जो स्कूल के शागिर्द हैं उनको मुफ्त बैग और किताबें तकसीम की जा रही है। इस तकरीब के अंदर जो मेहमान खुसूसी शहजाद मलक और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद है। इस हवाले से उनका क्या कहना ही जेको अॼु जो प्रोग्राम आहे तव्हां ॾिसी रहिया हूंदा, असां अली मोहम्मद महर में बीठा आहियूं, तालका हुसैन बख्श मरी आहे। अॼु असां आर्ट्स फाउंडेशन जे पारां जेके आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स आहिनि हिकिड़ो त असां मापियूं ताईं पहुची करे उन्हनि खे जंहिंजी उमिरि स्कूल जी आहे पंहिंजे कम्यूनिटी मोबिलाइज़र जे ज़रिए सां उन्हनि खे स्कूलनि में वठी आया आहियूं। ॿियो जेको आहे उन वरी जेके स्कूल में आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स आहिनि उहे इनरोल थियूं, पर उन सां गॾोगॾु जेके ॿियूं बि नियाणियूं उते पढ़नि पियूं उन्हनि में अॼु असां स्कूल जेको आहे किट्स तक़सीम पिया कयूं, जंहिंमें स्टेशनरी आहे बुनियादी उन्हनि जा पेन पेंसिल शार्पनर इरेज़र ऐं कापीज़ ऐं दान जेको आहे हिकिड़ा स्कूल बैग्स आहिनि। त उन सिलसिले जी तकरीब आहे जंहिंमें असांजा डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अज़ीज़ शोरो साहब जन मौजूदु आहिनि, असांजा DO प्राइमरी जेको आहे नबी बख्श गुरगेज साहब मौजूदु आहिनि, तालका एजुकेशन ऑफिसर फीमेल गज़ाला साहिबा आहिनि, ऐं TO जेको आहे मेल जेको आहे अयाज़ साहब जन आहिनि, असिस्टेंट कमिश्नर जेको आहे इरफान निज़ामानी साहब बि मौजूदु आहे। हिते जेको आहे अवामी नुमाइंदा जेके चूंडियल आहिनि, यूनियन काउंसिल जा चेयरमैन्स उहे बि आहिनि, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा जेके मेंबर आहिनि उहे बि आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु वॾे तइदाद में जेको आहे स्टाफ ॿारड़ा छोकिरा छोकिरियूं, छाकाणि त हितां जे गर्ल्स स्कूल जी बिल्डिंग जेको आहे ज़बून हाल थी चुकी आहे, उते पढ़ाई नथो सघिजे पियो। हिकिड़ो बॉइज़ स्कूल जो कमरो आहे, उते असां सरकार खे एबटाबाद में महकमा RTA नए किरायों के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना कर सका। ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया लेने के साथ साथ बदतमीजी भी करने लगे, झगड़े मामूल बन गए। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से, जिनको शहरी मसाइल से आगाह कर रहे हैं। जी उबैद सुलेमानी, अपडेट कीजिएगा। एबटाबाद में हम मौजूद हैं। महकमा RTA की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, एबटाबाद से नवा शहर का किराया 20 रुपये मुख्तास कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी ड्राइवर हजरात 20 रुपये नहीं ले रहे बल्कि 30 रुपये या इससे भी ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ 20 रुपये का, तो 30 रुपये लेते हैं तो शुरू में ये 20 रुपये का नोटिफिकेशन पुलिस अमल दरामद करवा रही है कि नहीं करवा रही? करवा रहे। 20 रुपये लेने चाहिए, मगर ड्राइवर हजरात 30 रुपये लेते हैं। ये आवाम के साथ जुल्म हो रहा है हर जगह पर। अच्छा, अक्सर लोग जो 30 भी लेते हैं वो खुश असलूबी के साथ ले लेते हैं या फिर भी लड़ाई करते हैं? लड़ाई ये कम नहीं करते, ज्यादा लेते हैं उससे। जी बिल्कुल जी, शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि सुजुकी ड्राइवर यहाँ पर एक तो इजाफी किराया वसूल करते हैं, लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। इस तरह पुलिस अपनी जानब से भरपूर कोशिश करती है, लेकिन हर गाड़ी की कंप्लेन करना भी एक मुश्किल सबब है, मुश्किल अमल है। तो इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यह जो किराए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाएं, ताकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एनफोर्समेंट विंग ने बगैर रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 18,000 गाड़ियों के चालान करते हुए 1 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी MMPIs की निगरानी में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स ने नाके लगाकर ऑपरेशन किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने गुज़श्ता माह डिप्टी MMPIs की निगरानी में कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, बगैर रोड परमिट, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, धुआं छोड़ने वाली 18,000 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए, जिनको तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख 67,000 रुपए जुर्माना किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की हदायत पर
چیف ایگزیکٹو افیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد نے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیوں کا حکم دیا۔ سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے شہر میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ نومبر میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انفورسمنٹ ونگ نے پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری ایندھن کا استعمال کرنے والی 5010 گاڑیوں کے خلاف مختلف قانونی کارروائیاں کی۔ 2399 دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جبکہ خطرناک حد تک فضائی آلودگی کا سبب بننے والی 433 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند بھی کیا گیا۔ بغیر روٹ پرمٹ چلنے والی 1813 مختلف کیٹاگریز کی پبلک ٹرانسپورٹ کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ 2005 گاڑیوں کو جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس اور رجسٹریشن چلنے والے 9922 غیر قانونی موٹر سائیکل چنگچی رکشوں فیڈریشن آف آل پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر ممبر اور علی عثمان گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمین چودھری کاشف رضوان نے رواں ماہ ہونے والی فیڈریشن کے الیکشن میں یونائیٹڈ بزنس مین گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اس گروپ کے امیدوار شیخ عاطف اکرام ضرور جیتیں گے۔ انہوں نے برسر اقتدار بزنس مین پینل کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت ہمارے رپورٹر علی فاروق چودھری کاشف رضوان کے ساتھ ہیں۔ جی علی اپڈیٹ کیجیے گا۔ پریس کلب میں جہاں پر چودھری کاشف رضوان نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور جو ایف پی پی سی سی آئی کے جو الیکشن ہیں اور پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے جو دسمبر میں ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے یو بی جی یونائٹڈ بزنس پینل کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور یہ بزنس پینل میں پہلے تھے اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پوچھیں گے جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے چینج کر لیا پینل اپنا؟ جی میرے نزدیک یو بی جی سامنے دیکھیے یو بی جی چینل بہت اچھی یو بی جی گروپ جو ہے وہ بہت اچھا گروپ ہے کیونکہ وہ بزنس مین ہیں، تقریباً کمپلیٹ بزنس مین ہیں اور پرانے بزنس مین ہیں، تو اس لیے میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور یہ ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہے۔ اچھا یہ جو انہوں نے یونائٹڈ جو بزنس گروپ کے جو مخالف گروپ ہے بزنس مین پینل انہوں نے جو امیدوار کھڑا کیا محمد علی صدارتی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کینڈیڈیٹ اس قابل ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو کسی قابل بھی نہیں ہے، وہ تو یونین کونسل کے کونسلر کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ جو میاں انجم نثار صاحب نے کھڑا کر دیا ہے، انجم نثار صاحب کو بخوبی علم ہے، شاہ زیب اکرم کو میرے بھائی ہیں، عرفان اقبال صاحب کو مکمل پتہ ہے کہ وہ کیا کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو کون سا امیدوار ہے جی یو بی جی کا؟ شیخ عاطف کرام صاحب ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، خوشبو ان کی بہت اچھی ہے۔ دوسرا آپ کا نون لیگ سے بھی تعلق ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو لاہور چیمبر آف کامرس آئے تھے تو کیا اس ٹائم آپ بھی وہاں موجود تھے؟ کیا تاثرات تھے؟ کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے؟ سامنے دیکھیے گا جی میرے لیے یہ بڑی فخر والی بات ہے کہ میں اس دن ملتان گیا ہوا تھا، شیخ فؤاد مختار صاحب ہیں، انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو بلوایا تھا، میں اس دن ملتان گیا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ میاں صاحب نے پوچھا کہ وہ کاشف صاحب نہیں نظر آ رہے، آری والا والے، وہ کاشف صاحب آری والا والے نظر نہیں آ رہے، تو مجھے بڑی فخر والی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یاد کیا، میں اس دن ادھر تھا۔ میاں نواز شریف ہمارا ملک کے لیے ہمارے پرائم منسٹر بنیں گے، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، دوبارہ پاکستان لیپس اینڈ باؤنڈز دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، میاں شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ بہت مہربانی جی، گفتگو سنی رضوان صاحب کی، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جی یہ سپورٹ کریں گے یو بی جی گروپ کے امیدوار کی اور بزنس پینل انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آئندہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے جیلانی پارک میں سالانہ گلداتی نمائش کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی محمد طاہر وٹو نے انہیں بریفنگ دی۔ سید اصفر علی ناصر نے گلداتی کی نمائش کے انعقاد پر اس موقع پر محمد طاہر وٹو نے کہا کہ پی ایچ اے نے گلداوزی نمائش میں شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے 35,000 سے زائد میری گولڈ گلداوزی کے پھولوں کی نمائش سجائی گئی۔ شہریوں کے لیے لائٹس اینڈ ساؤنڈ شو اور فوڈ کورٹس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پی ایچ اے شہریوں کو سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موقع خاتمے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر پی ایچ اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صفی اللہ گونتل اور ڈائریکٹر ایم اینڈ او نقیب ارشد سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔
लेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। इत्तेहाद कॉलोनी और मिकलॉट रोड डिवीजन में बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी में मुलविस फास्ट फूड रेस्टोरेंट और मारूफ बेकरी पकड़ी गई, जिस पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। मजीद जानते हैं अमजद हाशमी की इस रिपोर्ट में। लेस्को की बिजली चोरी मुहिम के सिलसिले में इत्तेहाद कॉलोनी और मैक्लोर रोड सब डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी में मुलविस फास्ट फूड रेस्टोरेंट और मारूफ बेकरी पकड़ी गई। मैक्लोर रोड सब डिवीजन की हदूद में वाकया शबे देग नामी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मालकान मीटर का डिस्प्ले वॉश करके बिजली चोरी कर रहे थे। चोरी की बिजली से अढ़ाई टन के 6 चिलर और 3 AC चलाए जा रहे थे। मुलजमान को डिटेक्शन की बिल में 23,000 यूनिट चार्ज किए गए हैं। इसी तरह इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन के अमले ने दौरान चेकिंग मारूफ बेकरी मलवा का मीटर चेक किया, जो कि बोगस निकला, जिस पर मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मुलजमान को डिटेक्शन बिल की मद में 11,000 यूनिट चार्ज किए गए। लेस्को की बिजली चोरी मुहिम के सिलसिले में इत्तेहाद कॉलोनी और मैक्लोर जुबानें ही कौम की पहचान होती हैं। पंजाबी जुबान के फरोग और उजागर करने के लिए पंजाब हाउस लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुल्क के मशहूर स्कॉलर मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह भी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। नाज़रीन, पंजाबी ज़बान की तारीख तकरीबन 5000 वरे पुरानी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ABC ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਲਾਫਾਨੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਉਹ ਅਮਨ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਗਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਤਕਾਰੀਬ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀਗਰ ਅਦਾਰੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਬਲਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਰੱਬ, ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 मार्च को जमान पार्क तशद्दुद का शिकार नदीम अशरफ संधू ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। कहा, मुकामी क़यादत ने हमेशा मायूस किया, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता। नदीम संधू का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर्स को इज्जत दी है, पीपल्स पार्टी का इंतखाब खुद किया है। मजीद जानते हैं सलाहुद्दीन नूर की इस रिपोर्ट में।
जी, रायविंड में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। 2018 से मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले और 8 मार्च को इमरान खान के घर के बाहर जमान पार्क में पुलिस तशद्दुद का शिकार और मीडिया पर वायरल होने वाले कारकुन नदीम अशरफ संधू, साबका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ इलामा इकबाल टाउन जोन लाहौर, जिनको घर बुलाकर खराज तहसीन पेश किया, उन्होंने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। नदीम अशरफ संधू ने मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में साबका वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, जनरल सेक्रेटरी लाहौर राना जमील मंज और सदर लाहौर चौधरी अमजद जट, उम्मीदवार बराए एमपीए सफदर दिलशाद और मुकामी क़यादत की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जियालों में वेब एक्सेल लाहौर के ज़ेर एहतमाम और रखें एक्सपोर्ट बिजनेस की एक नई बुनियाद के उन्वान से सीईओ शहबाज सिद्दीक ने सेमिनार का इनेकाद किया। मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। वेब एक्सेल लाहौर के ज़ेर एहतमाम और रखे एक्सपोर्ट बिजनेस की एक नई बुनियाद के अनवान के ज़ेर तहत लाहौर के निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर थे। कंपनी के सीईओ शहबाज सदीक, डायरेक्टर वेब एक्सेल रबीना शहबाज, अदील आरिफ राना, जेरेमी विंग ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज सलावत कलाम पाक से हुआ। काशिफ अनवर का कहना था कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला वाफर तादाद में आए। पहले हम अपने आप को इंडिया से मिलाते थे, अब इंडिया भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी और अपनी यूथ को उजागर करना होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करना होगा ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। वेब एक्सेल लाहौर के ज़ेर तमाम और रखे एक्सपोर्ट बिजनेस की एक नई बुनियाद के अनवान के ज़ेर तहत लाहौर के निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर थे। कंपनी के सीईओ शहबाज सदीक, डायरेक्टर वेब एक्सेल रबीना शहबाज, अदील आरिफ राना, जेरेमी विंग ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज सलावत कलाम पाक से हुआ। काशिफ अनवर का कहना था कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला वाफर तादाद में आए। पहले हम अपने आप को इंडिया से मिलाते थे, अब इंडिया भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी और अपनी यूथ को उजागर करना होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करना होगा। डकैती वारदात का शिकार सिख फैमिली मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करने सिविल सेक्रेटरीट पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुलाकात में सिख यात्रियों ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह हमारा ख्याल रखा उसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाकिर अख्तर जमान ने कहा कि सिख यात्रियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल में ऐसा नाखुशगवार वाक़या कभी दोबारा पेश न आए। मज़ीद तफ़सीलात राना इरफान हैदर की इस खुसूसी रिपोर्ट में देखते हैं। नौसरबाजी का शिकार होने वाली भारतीय रियासत हरियाणा की सिख फैमिली ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान से सिविल सेक्रेटरीट में मुलाकात की और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी, रकम और माले मसरूका की बरामदगी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सिख फैमिली ने पंजाब पुलिस की पेशा वराना काबिलियत की तारीफ की और कहा कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह हमारा ख्याल रखा इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिख यात्री हमारे मेहमान हैं और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यकीनी बनाएंगे मुस्तकबिल में ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और खुसूसी सियाहती पैकेज के तहत सिख यात्रियों को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हाल ही में सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का आगाज किया है, जिसके जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने कहा कि वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पंजाब पुलिस ने मुल्जिमान को सिर्फ 4 रोज के अंदर कराची से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों से मदद ली गई। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। नौसरबाजी का शिकार होने वाली भारतीय रियासत हरियाणा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की अर्बन ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और बस शेड्यूलिंग सिस्टम स्कीम की मंजूरी दी गई। अब पंजाब के तमाम शहरों में महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंतजाम चलने वाली तमाम अर्बन ट्रांसपोर्ट में एक ही कार्ड से सफ़र किया जा सकेगा। मेट्रो बस सर्विस, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बसों में एक ही कार्ड से सफ़र हो सकेगा। शहरी इस कार्ड को किसी भी मोबाइल ऐप या ई बैंकिंग के जरिए चार्ज कर सकेंगे।
पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इस इकदाम से मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियत मुयसर आएगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के एक ही दिन में 95,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद उस्मान ने बताया कि वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बना दिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का विजन है कि हर वो शहरी जो ड्राइविंग करना चाहता है उसके पास लाइसेंस हो। DLIMS पॉइंट रूट सिस्टम के तहत तमाम ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने गुज़श्ता 4 दिन में 3,15,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर्स में बहुत रश था। DLIMS सिस्टम पुराना था जिसमें शहरियों को लाइसेंस हासिल करने में ज्यादा वक्त दरकार होता था। नए सिस्टम के तहत जल्दी और कम वक्त में शहरियों को ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग सेंटर के कयाम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा ब लम्हा हासिल किया जा रहा है। सेफ सिटी ने 3 गुमशुदा बच्चियों को वालिदैन से मिलवा दिया। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने सियालकोट और फैसलाबाद से गुम होने वाली बच्चियों को वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इमरजेंसी 15 पर 10 साला मीरब, 4 साला हुरैन और 3 साला राहना की गुमशुदगी की कॉल्स मौसूल हुई। फैसलाबाद मिल्लत टाउन से मीरब और सियालकोट संबड़ियाल से हुरैन और राहना घर का रास्ता भूल गई थी। वुरसा की जानिब से बच्चों की गुमशुदगी की कॉल्स पुकार 15 इमरजेंसी पर की गई, जबकि दूसरी जानिब संबड़ियाल, सियालकोट और मिल्लत टाउन फैसलाबाद से बच्चियां मिलने की कॉल्स भी मौसूल हुई। संबड़ियाल पुलिस और मिल्लत टाउन पुलिस ने तस्दीक के बाद बच्चियों को वुरसा के हवाले कर दिया। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद को अपनों से मिलवा चुका है। तर्जुमान सेफ सिटी शहरी किसी भी गुमशुदगी की सूरत में फौरन 15 पर इतला दें। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी साइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब में भी डे मनाया जा रहा है। साबका DG एग्रीकल्चर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक ने साइल डे के हवाले से पैगाम दिया और प्यारा सा गाना गाया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मगल से, जो इस वक्त उनके साथ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे आज ज़राअत के हवाले से। तो ज़राअत के हवाले से आज जो है ना साइल के लिहाज से वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के ज़राअत ऑफिस में और हमारे साथ रिटायर्ड DG जो है वो मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक साहब। इनसे जानते हैं कि इस वाले अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, माशाल्लाह आप रिटायर भी हो, देखा, क्या कहेंगे आज पहले तो सॉइल डे के हवाले से? सॉइल डे के हवाले से तो ये है कि ज़मीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ ज़मीन पर है। ठीक है, ज़मीन पर रहना, सहना, फसलें उगाना, ये सब साइल की मेहरबानी। आप भी साइल हैं, मैं भी साइल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हर किसी को ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल हो। आज का तो वैसे भी वर्ल्ड डे है उसका, तो इस लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीनों में हिसाब किताब खाद का क्या होगा, कितनी डालेंगे तो फिर ही उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसलिए आज का ये दिन मेरे लिहाज से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही। अच्छा, मज़ीद बताइएगा, माशाल्लाह आज जो है ना विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और आपने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से आज महफिल को 4 चांद लगा दिए हैं। तो हम चाहेंगे और नाज़रीन भी चाहेंगे कि आप वो वाला सॉन्ग सुनाएं ताकि जो है ना सारे आज बिल्कुल चाको चौपन दस्ते के साथ मुतहरिक हो जाए। जी क्यों नहीं, तुमसे वो एक्सीडेंटल प्यार हुआ, लाइफ में वो भी पहली बार, ला 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 ला, हाउ डू यू डू, ला 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 ला, हाउ डू यू डू। ओ मेरे दिल का क्वार्टर तुम कर लो ऑक्यूपाई, मैं तुमको रेंट न दूंगा, ओ इवन सिंगल पाई, तारिक अपना तो बुरा हाल हुआ, लाइफ में वो भी पहली बार, ला 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 ला, हाउ डू यू डू, ला 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 ला, हाउ डू यू डू। नाज़रीन,
जिस तरीके से आपने देखा कि माशाल्लाह 74 ईयर की इनकी एज है और बिल्कुल एक्टिव हैं और साबका ये डीजी भी रहे हैं और अब जो है ना प्रोफेसर विजिटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और दूसरा आपने देखा किस तरीके से इन्होंने हमें एक जो है ना तरोताज़ा होने। लाहौर गुलबर्ग के इलाका में कंवलजीत सिंह की फैमिली के साथ डकैती की वारदात का मामला। वारदात ट्रेस होने पर सिख फैमिली ने आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट समेत तमाम रीडिंग टीम का शुक्रिया अदा किया। कंवलजीत सिंह का कहना था कि मैं सलाम पेश करता हूं पुलिस को जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के क्राइम फाइटर जवानों ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके छीनी हुई रकम असल मालिकान के हवाले कर दी। लाहौर पुलिस मजीद 2 मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मार रही है। डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट और ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीमों को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने ऑफिस में मदऊ किया और चाय पानी के साथ साथ रीडिंग टीम को सर्टिफिकेट, नकद इनामात और शाबाश भी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, जाफर खान, मंदुखेल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शामिल हैं। इजलास में मुतालिका डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक हैं। इजलास में आज सूबा बलोचिस्तान में पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड अब तक सरगोदा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हजारा और मालाकंड में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुकी है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।